अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 5 which is science is a collaborative field. So let's start. Scientists from all around the world team up to share ideas and make progress in their research. Some are studying similar things while others have different knowledge that can help. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो टीम अप होकर अपना क्या करते हैं कि आइडियाज़ शेयर करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं अपनी रिसर्च में. सम आर studying similar things while others have different knowledge that can help. When researchers from different fields work together to create new scientific knowledge is called interdisciplinary research collaboration. कह रहे हैं कि डिफरेंट फील्ड्स के जब रिसर्चर्स आपस में कोलैबोरेट करके कोई नॉलेज क्रिएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कोलैबोरेशन. दिस इज इम्पोर्टेंट because they can work on research, find solution, use what they learn to solve problems and discover new things. For example, cognitive science combines knowledge from neurology, psychology, anthropology, linguistics, environmental engineering, pharmacology, and statistics. Women studies combine what we know about gender, history, literature, and biology. Public health combines information from medicine, sociology, and psychology. ये साइड बॉक्स देखें, यहाँ पे हमें दिया हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सिंपली किसका कॉम्बिनेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स? बायोलॉजी का एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. It helps to understand complex biological data. The new emerging carriers of biology are bioinformaticians, apply their computer skills in solving problems in life sciences. Biomedical engineers develop new devices and equipment for improving human health. Astrobiologists study effects of outer space on living organisms. Cryobiologists study effects of low temperature on living organisms, etc. Next हमारे पास there was a special issue about research collaboration during the COVID era showing how it was good for both science and society when we work together across borders, cultures and different fields of study. Our famous example of scientists working together is the International Space Station where space agencies from Europe, USA, Russia and Japan all team up. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास biological method. There is nothing magical about science. You already have some of the qualities of a scientist. For example, you are curious. You like to do new and different things. You like to explore new places. These are the natural talents or skills of a scientist which may use to solve different scientific problems. Scientists, including biologists, employ an approach for solving scientific problem that is known as scientific method. सो स्टूडेंट्स किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट एक अप्रोच या मेथड यूज करता है उसको हम कहेंगे ये क्या है? साइंटिफिक मेथड. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. कह रहा है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है उसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. ठीक है, तो biological method it has many steps. First step is recognition of biological problem. So students, सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करनी है कि प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. फिर हम जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करेंगे. ठीक है, कि ये प्रॉब्लम किन एरियाज में पाई जा रही है या और क्या. ठीक है, नेक्स्ट होगा हाइपोथेसिस, बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस. जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम उन ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर एक हाइपोथेसिस बिल्ड करेंगे. देन ड्राइंग डिडक्शन, फिर उस हाइपोथेसिस से हम कुछ चीज डिडक्ट करेंगे, डिड्यूस करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट, फिर हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. एंड द लास्ट वन इज इन्फेरिंग रिजल्ट के रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे. सो अब इन 6 के 6 स्टेप्स को हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन. फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. Biological problem is a question related to living organism. This question either asked by someone or comes in mind of a researcher. So students कह रहा है कि biological problem सिंपली कोई भी क्वेश्चन हो सकता है related to living organism
दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड बाय समवन, कोई पूछ सकता है, और कम्स इन माइंड ऑफ a रिसर्चर, या किसी की रिसर्चर के माइंड में आ सकता है। Observation are important step in solving biological problem. Observation are made by five senses of vision, hearing, smell, taste and touch. जो observations है हम किसके थ्रू करेंगे? थ्रू by using our senses. Our sense of vision, hearing, smell, taste and touch. Observations are of two types: qualitative and quantitative. Qualitative observations are based on some quality or characteristics. Quantitative observations based on measurable value. Quantitative observations being measurable are invariable and can be expressed in terms of number, so are more accurate. Next step is formulation of hypothesis. Hypothesis is a statement that may prove to the answer of problem under study. Hypothesis is the tentative explanation of observations that might be true. A hypothesis should have following characteristics. So students, वो कह रहा है कि जो हम hypothesis deduce करेंगे वो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, को जो हाइपोथेसिस है वो एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए. इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया. इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस एंड इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफाइएबल. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिडक्शंस. डिडक्शंस आर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस. वो क्या होते हैं? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस के. टू ड्रा डिडक्शंस, हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू. डिडक्शंस इन्वॉल्व इफ एंड देन लॉजिक. ये डिडक्शन में हम इफ एंड देन लॉजिक यूज करते हैं. एक्सपेरिमेंटेशन, it is the most important step of biological method. Experiments are performed to prove if hypothesis is true or not. The deductions drawn from hypotheses are subjected to rigorous testing. Through experimentation, biologists learn which hypothesis is correct. And the last one is summarization of results. The biologists gather actual quantitative data from experiment. This data arranged to draw results. कि जो साइंटिस्ट है या बायोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट से डाटा जो है कलेक्ट करेगा, उसको अरेंज करेगा और उसमें से रिजल्ट्स को क्या करेगा? कंक्लूड करेगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बच्चों हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ. कि क्या डिफरेंस है हाइपोथेसिस में, थ्योरी में और लॉ में. हाइपोथेसिस हमने ऊपर पढ़ा है. आई हाइपोथेसिस क्या है? इज अ टेंटेटिव आंसर टू अ क्वेश्चन. कि किसी भी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक उसका टेंटेटिव आंसर वो हाइपोथेसिस है. इट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड अवेलेबल डाटा. कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है और जो अवेलेबल करंटली जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसकी बेस के ऊपर होता है ये. A scientific hypothesis makes prediction that can be tested by recording additional observation. कि कह रहा है कि जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती है वो प्रिडिक्शन करती है, ठीक है, जिसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस. In a deduction based science, deduction usually takes the form of predictions about what comes out of experiment or observation. We should expect if a particular hypothesis is correct. We then test the hypothesis by performing the experiment to see whether or not the results are predicted. This deduction reasoning takes the form of if and then logic. Next आ जाता है हमारे पास theory. What is a scientific theory and how it is different from hypothesis? A scientific theory is a much broader in scope than a hypothesis. Compared to any one hypothesis, a theory is generally supported by more evidence. ठीक है स्टूडेंट्स, कि जब एक हाइपोथेसिस है, जब उसको हमने क्या किया, उसके रिलेटेड हमने ऑब्जर्वेशंस की, डाटा कलेक्ट किया, तो जब हमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं उसकी सपोर्ट में, तो वो जो हाइपोथेसिस है वो एक थ्योरी बन जाती है. ठीक है, सो कह रहा है कि जो थ्योरी होती है वो क्या होती है? सपोर्टेड बाय मेनी एविडेंस. In spite of the body of evidence supporting widely accepted theories, scientists must sometimes modify or even reject theories with a new research method produce results that do not fit. So students कह रहे कि इतनी ज़्यादा एविडेंस होने के बावजूद भी जो साइंटिस्ट समटाइम क्या करते हैं कि थ्योरीज को मॉडिफाई भी कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, और रिजेक्ट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन न्यू रिसर्च मेथड. कि अगर वो उन्होंने किसी नए मेथड से रिसर्च कंडक्ट किया और रिजल्ट्स डिफरेंट आए हैं तो वो उस थ्योरी को रिजेक्ट कर सकते हैं. A theory that has been verified and appears to have wide application may become biological law. For example, Mendel's law of inheritance. Okay, students.
अब कह रहे हैं कि ऐसी थ्योरी जो वेरीफाइड हो जाए मेनी टाइम्स एंड अपीयर्स टू हैव वाइड एप्लीकेशंस, वो क्या बन जाती है, एक लॉ बन जाती है, जैसे कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट एक बॉक्स देखिए हमारे पास है, द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑफ information is called data. First data is collected, then data is organized by using techniques such as table and graph. To predict on the basis of data is called analysis. Analysis of data is done by means of ratio and proportion. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। ये जो ऊपर हमने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा है और उसके हमने स्टेप्स पढ़े हैं कि सबसे पहले क्या है, फाइंडिंग ऑफ प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम है क्या है, उसके बाद उस ऑब्जर्वेशंस, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट एंड देन रिजल्ट। तो एक हमने जो हमारे पास मलेरिया की कॉमन एग्जांपल है उसको हम एज एग्जांपल के तौर पे लिया हमने बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। मलेरिया has killed more people than any other disease. The malaria example of biological problem and how such problems can be solved. नीचे देखिए एक बॉक्स में हमें दिए हुए सिम्टम्स ऑफ मलेरिया के मलेरिया के सिम्टम्स क्या है कि हमें पता चला कि मलेरिया है हमें। द पेशेंट ऑफ मलेरिया फील्स वेरी चिल एंड कोल्ड, ठीक है। हिज टेम्परेचर राइज अबव नॉर्मल वैल्यू ऑफ 98.6 फ़ारेनहाइट। पेशेंट सफर्स फ्रॉम हेडेक and has feeling of nausea. After some time, the person begins to sweat, feels better. The whole series of events are repeated after every 24 to 48 or 72 hours, depending upon the species of Plasmodium. First one is cause of malaria. कि जो मलेरिया नहीं होता किस वजह से, इसका कॉज क्या है, तो अब इसको हमने स्टडी करना है। बाय अडॉप्टिंग द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इट वाज प्रूव दैट मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। कह रहा है कि ये जो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं इनको फॉलो करते हुए हमें ये प्रूव हुआ कि जो मलेरिया है इसको कौन काज करता है, प्लाज्मोडियम। क्योंकि ऑफ प्रॉब्लम क्या है कि मलेरिया वाज अ प्रॉब्लम इन एंशिएंट टाइम्स के पुराने वक्त से जो मलेरिया एक कॉमन प्रॉब्लम थी, बट इस काज वाज नॉट नोन कि इसका जो काज था वो मालूम नहीं था। ऑब्जर्वेशंस इन 19th सेंचुरी मैनी डिफरेंट काजेस ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड कि 19th सेंचुरी में बहुत सारी वजूहात जो है ना वो मलेरिया की वो बताएगी। बाय दैट टाइम देयर वर फोर मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। उस टाइम पे चार मेजर ऑब्जर्वेशंस थी मलेरिया के बारे में कि मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन। एक ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो मार्शी एरियाज है मलेरिया का आपस में कोई रिलेशन है। क्विनीन इज इफेक्टिव ऑफ ट्रीटिंग मलेरिया। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज डज नॉट कॉज मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। अब हाइपोथेसिस इन ऑब्जर्वेशन जो चार हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनकी बेस के ऊपर हमने हाइपोथेसिस क्या फॉर्मुलेट की। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉलोइंग हाइपोथेसिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय अ फ्रेंच फिजिशियन लेवरॉन इन 1882। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, क्योंकि जितने भी मलेरियल पेशेंट थे जब उनका उन्होंने ब्लड ऑब्जर्व किया तो उसमें प्लाज्मोडियम पाया गया था, तो उन्होंने जो हाइपोथेसिस डिड्यूस कर दी कि प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का। नेक्स्ट, अब जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो जाती है उसके बाद हम डिडक्शन फॉर्मुलेट करते हैं। तो डिडक्शन क्या दिया है, although hypothesis is a tentative idea to draw deductions it is accepted to be true. One of the deductions from our hypothesis was, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि डिडक्शन में इफ एंड देन लॉजिक यूज करते हैं। तो उन्होंने इसमें क्या डिडक्शन की कि इफ प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया का, देन ऑल पर्सन विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। द डिडक्शन वाज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब ये जो डिडक्शन है कि अगर प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया का तो तमाम मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट से हम इस डिडक्शन कैसे प्रूव करेंगे, तमाम हम जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनका और जो नॉर्मल उनका हम ब्लड को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। दिस डिडक्शन वाज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वाज डिजाइंड एज blood of 100 patients with examined under microscope for the purpose of having control. The blood of 100 healthy persons was also examined under microscope. रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स हमारे पास क्या है, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हमने क्या किया, 100 हेल्दी पर्सन का और 100 जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनका ब्लड को क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। The results of experiment show that almost all malarial patients
have plasmodium in their blood. Only 7 out of 100 healthy persons had plasmodium in their blood. Other 93 healthy persons were without any trace of plasmodium in their blood. In the 7 healthy persons with plasmodium in their blood, plasmodium was in incubation period. So what is the incubation period? The incubation period is the time the entry of parasite in the host and the appearance of symptoms of disease. After a few days, those 7 healthy persons became ill with malaria. Results were quite convincing to prove the hypothesis that plasmodium is the cause of malaria. Reporting the results of these experiments were announced worldwide, which helped to control malaria. नेक्स्ट वन इज स्प्रेड ऑफ मलेरिया. अब ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी कि मलेरिया स्प्रेड कैसे होता है और इसको हमने बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके कैसे सॉल्व किया. बायोलॉजिकल मेथड हैज टू फाइंड द मस्कीटो, फाइंड दैट मस्कीटोज स्प्रेड मलेरिया. Recognition of problem. Malarial is a fatal disease. Fatal यानी death causing. Since ancient times, after the confirmation that malaria is caused by plasmodium, it was important to find how plasmodium get into the blood of man. This disease was more common in areas near stagnant water ponds where mosquitoes breed. It was found that malaria is associated with marshes. Drinking water of marshes does not cause malaria. From these points, it can be concluded that plasmodium was not present in marshy water. So plasmodium must be carried by something that comes to marshy water. Problem in this study was to find the agent. Observation. An American scientist, A.F.A. King, listed 20 observations in 1883 about spread of malaria. Some important observations were people who slept outdoor were more likely to get malaria than who slept indoor. People who slept under fine net were less likely to get malaria than those who did not use nets. People who slept near smoky fires usually did not get malaria. Hypothesis. On the basis of these observations, King suggests a hypothesis. Mosquitoes transmit plasmodium so are involved in spread of malaria. इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे जो किंग था उसने सजेस्ट किया कि जो मस्कीटोज हैं ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं. डिडक्शंस. फॉलोइंग डिडक्शंस आर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस 2. टू डिडक्शंस की गई. फर्स्ट वन इज plasmodium should be present in mosquito. Second one is a mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient. Experiment. In order to test the above deduction, many experiments were performed. First one is experiment of Ronald Ross. Ross, a British Army physician working in India, performed an important experiment in 1897. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in mosquito stomach. उसने क्या किया कि एक मस्कीटो को बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट को और उसके कुछ दिनों बाद उसने मस्कीटो को किल किया और देखा कि जो प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है. नेक्स्ट. Ross used sparrows in experiment. He allowed female Culex mosquito to bite sparrows suffering from malaria. He then allowed these mosquitoes to bite healthy sparrows. After a few days, these sparrows became ill with malaria. In the end, the hypothesis was tested by direct experimentation on human beings. An Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. Mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy person. The person later became ill with malaria. Results. All these experiments confirm that mosquito transmit plasmodium and spread malaria. नेक्स्ट पेज पे देखें, ये आपको एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा है. ये है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी. क्या है? सबसे पहले हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम आती है कि प्रॉब्लम को हमने रिकॉग्नाइज करना है कि प्रॉब्लम है क्या है. ठीक है. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस करनी है, फिर हाइपोथेसिस डेवलप करनी है, फिर डिडक्शन करनी है, देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. उसमें हमने एक कंट्रोल ग्रुप लेना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेना है, फिर इंजर्स को इंटरफेयर करना है. देन हाइपोथेसिस को जो रिजल्ट्स हैं वो या तो उसको सपोर्ट करेंगे या उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. अगर तो वो सपोर्ट कर रहे हैं यानी हाइपोथेसिस 2 है तो वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में फर्दर रिसर्च और फिर हाइपोथेसिस वो थ्योरी बन जाएगी और थ्योरी अगर प्रूव हो जाती है और वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल और लॉ. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.